السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خان بول رہے ہیں؟ جی کون؟ جی میں محمد رفیق بول رہا تھا اندور سے۔ جی بتائیے بھائی، سب خیریت؟ جی بھائی اللہ کرم۔ وہ جی بہت ساری آپ کی میں نے آئیڈیو سنی ہے یوٹیوب پر، موبائل پر، تو تھوڑا سا مجھے بھی شوق ہوا کہ آپ سے کچھ استفادہ میں بھی حاصل کر لوں۔ ارے بھائی ہم اس لائق کا بھائی کسی عالم سے بات کیجیے۔ جی بھائی ہم اس لائق کہاں بھائی، کسی عالم سے بات کیجیے، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم۔ نہیں، اب وہ جس طرح میں نے آپ کو سنا ہے تو کچھ لائق تو میں آپ کو سمجھتا ہوں نا، اس لیے۔ چلیے الحمدللہ۔ جی بتائیے۔ مطلب آپ غیر مقلد ہیں شاید، ہے نا؟ ہیلو جی ہیلو بولتے جائیے آرام سے۔ ہیلو جی ہیلو ہاں، جی بتائیے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے بھائی ہم اہل تکلیف کو، حدیث ہیں، غیر مقلد ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر مقلد جو سب سے پہلے تھے وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا ہم اہل سنت ہیں، متبع سنت ہیں، جن کو عام طور پہ کہتے ہیں اہل سنت، اور اہل سنت کا آج کے دور میں ایک ہی نام ہے، اہل حدیث۔ تو ہمیں کوئی بھی بات اگر آپ کیجیے گا تو اہل ہاں، حدیث سمجھ کے ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وہابی، اچھا نجدی اور غیر مقلد، یہ سب میرے بھائی ہاں، فالتو کے القاب ہیں، اور اچھا۔ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہیں، یہ جیسے اگر غیر مقلد کہا جائے تو اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ بتائیے مجھے۔ یہ کوئی لفظی نہیں ہے نا غیر مقلد، یہ تو جیسے عورت ہے، عورت کا الٹا بھائی کیا ہوگا؟ مرد ہوگا نا۔ اب کوئی کہتے نہیں ہاں، عورت ہے اور عورت کا الٹا بھائی وہ کیا بولتے ہیں، یہ غیر مرد اور مرد۔ غیر عورت، تو اس ٹائپ سے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی عورت کا الٹا ہوگا مرد، عورت کا الٹا میرے بھائی کہیں پہ بھی بھائی یہ نہیں اترا ہوا ہے کہ عورت کا الٹا ہوتا ہے بھائی وہ غیر عورت۔ تو اسی طریقے سے جو کوئی بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، اس کا الٹا ہوگا متبع۔ اس کا الٹا کبھی نہیں اچھا ہوگا کہ ہاں بھائی اگر کوئی مقلد ہے تو الٹا ہو جائے گا اس کا بھائی وہ غیر مقلد۔ یہ تو لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ اچھا، لوگوں نے کہہ دیا، ایسا ہوتا نہیں ہے یوں؟ نہیں۔ اچھا اچھا، چلیے ٹھیک ہے، اس کو بھی تحقیق کریں گے۔ تو میں یہ جیسے آپ تقلید نہیں کرتے ہیں مطلب، ہے نا؟ نہیں، تقلید دین اسلام میں ہے نہیں۔ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے ہیں؟ ارے ہے ہی نہیں دین اسلام میں، تو فالتو میں کہیں نہیں آپ، ارے تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا بھائی، آپ کہہ دو کہ ہاں نہیں کرتے ہیں ہم کسی کی بھی، ارے بھائی جب ہے ہے نہیں نا؟ تو ظاہر سی باتیں کریں گے کہاں سے؟ ہے نا؟ تقلید یعنی کل مطلب کہیں پہ بھی کسی کی بھی کچھ بھی کسی حساب سے بھی تقلید ہے ہی نہیں، مطلب، ہے نا؟ کچھ نہیں تقلید ہے۔ ہے نا؟ تو میں یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تقلید کو چھوڑ کر آدمی پورے مسائل کا حل کیسے کر سکتا ہے؟ علم والوں سے تو پوچھ کے۔ آپ کیسے کرتے ہیں، میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نا اللہ آپ میری تعالیٰ بات؟ کہتا ہے قرآن میں کہ تم کو جس چیز کا علم نہ ہو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو ہم جو ہمارے اچھا عالم دین ہے، علماء دین ہے، ان سے بھائی پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، پوچھ لیتے ہیں آپ؟ ہوں۔ تو ہم بھی پوچھتے ہیں تو لیکن ہم کو کوئی بتا ہی نہیں پاتا وہ باتیں۔ دیکھیے آپ پوچھتے کہاں ہم ہیں؟ نے آپ جہاں تو تک بنا ہم دلیل نے، کے ان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں، اور ہم نے جہاں تک کے معلوم کیا ہے تو تقلید جو ہے نا، ہم جو تقلید کرتے ہیں نا تو ہم ایک مجبوری میں تقلید کرتے ہیں، اور ہم ہمارے یہاں کے علماء سے بھی کہتے ہیں جو اہل حدیث علماء ہیں کہ آپ ہماری مجبوری کو ختم کر دیجیے، ہم تقلید چھوڑ دیتے ہیں۔ مجبوری ہے نا تو بات ٹھیک ہے، تو یہ امت کو کیا کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ واجب ہے؟ مجبوری ہے تو مجبوری تک اس کو رکھے نا، اس کو واجب کیسے میں بنا دیں؟ اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے اعتبار سے بات کروں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے جہاں تک سمجھا ہے، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، تو بھائی میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے، میں اگر نماز ہی اگر 2 رکعت پڑھنا چاہوں تو میں پوچھتا ہوں علماء سے کہ میں ایک بار ایک علماء کے پاس گیا، آپ ہمارے اندور میں ہے، بڑے عالم صاحب،
उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई किस लिए आए हो? हमने कहा नमाज सीखने के लिए आए आपके पास। तो कहते आपको अभी तक नमाज पढ़ना नहीं आती? मैंने कहा नहीं आती है ना, जिस तरह हमने बचपन से सीखी है, हमारे मकतब में सीखी है, हमारे मौलवी साहब ने सिखाई है, वो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। लेकिन अब कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अब तक जो आप नमाज पढ़ते थे वो सही नहीं है, सही नमाज जो है वहाँ फला जगह के इमाम साहब आपको सिखाएंगे, हदीस वाली नमाज, अभी आप हनफी वाली नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने कहा माशाअल्लाह, इससे अच्छी क्या बात हो गया कि हम हदीस वाली नमाज पढ़ें। तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि आप हमको नमाज के ए से जेड तक, अलीफ से या तक पूरा नमाज का मसला हमको जो है सही हदीस में सराहतन बतलाई। और ये सवाल हमारा सबसे है और ये सवाल हमारा आपसे भी है कि आप हमको 2 रकात नमाज सराहतन हदीस से पूरी ए टू जेड हमको नमाज सिखला दीजिए। अरे आप 2 तो पढ़वाइए हमको, फिर तो 4 भी है, 6 भी है, सारी नमाजें हैं। तो हमको कोई बता ही नहीं पा रहा है आज तक। हम उनसे अपने आप को हम उनके हवाले पेश कर देते हैं, हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं, हम तकलीफ छोड़ देंगे, हम पूरी मसाइल नमाज के लिख देते हैं। इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं, ठीक है, तकबीर तहरीमा से लेके इंशाल्लाह भाई सलाम फेरने तक आपको पूरा तरीका इंशाल्लाह भाई कुरान और अल्लाह के नबी की भाई जो हदीस है और अमल सहाबा है, इन तीनों से आपको बता देंगे। लेकिन पहली चीज सर आपसे पूछेंगे कि मतलब आपकी क्या भाई ऐसी सोच है कि जो भाई जो इतनी अहम इबादत है, क्या भाई ये कुरान और अल्लाह के नबी के जो फरमान है उनसे नहीं साबित है, तो क्या बाद में आपके इमाम साहब ने आके इसको साबित किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी सोच हमारी नहीं है, हरगिज़ ऐसी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि पूरा दीन जो है, नमाज का पूरा दीन कुरान और हदीस ही से साबित है, लेकिन इनडायरेक्ट समझते ना आप, यानी आप सराहतन पूरा दीन कुरान और हदीस से लेना चाहें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी सोच है और हमारी तहकीक है अभी तक की, और हम इसी में लगे कि पूरा डायरेक्ट सराहतन, अगर पूरा दीन तो छोड़िए, आप हमको नमाज ही पढ़वा दीजिए, ये हमारा सवाल है। पढ़वा देंगे नमाज आपको, लेकिन जो अपने आप पढ़वाइए ना, कोई हमको बात देखिए, हजरत सुनिए मेरी बात को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई आपसे बहस वगैरह नहीं कर रहा हूँ जैसा दूसरे लोग आपसे करते हैं और आप उनसे करते हैं, मेरा ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि बातें लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तकबीर तहरीमा से आप सिर्फ नमाज के फर्ज हमको पहले बतलाइए कि नमाज में कितने फर्ज हैं, या फर्ज होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप हमको जवाब दीजिए। कि चलो फर्ज होते ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट सीधी नमाज होती है, ऐसा आप हमको जवाब दीजिए। वाजिब कितने होते हैं, सुन्नतें होती हैं या नहीं होती हैं नमाज में, आप सबसे पहले हमको ये समझाइए, ये बतलाइए। नमाज के फर्ज आप बतला सकते हैं क्या आप मुझे कि कितने फर्ज होते हैं पूरी नमाज में? अरे भाई नमाज ये ठीक है, और जो बाकी जो चीजें हैं ठीक है, नहीं तो हमको नमाज के बाहर से भी सीखना पड़ेगा ना। सबके फराइज सुन्नत तरीका ये सब तो बच्चों को भी मालूम है। नहीं तो आप बच्चे वो तो मालूम है, हम आप हमारा सवाल भी समझिए। आप समझ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि मालूम सबको है, लेकिन क्या आप साबित कर सकते हैं, ये आपका नहीं। मैंने शुरू में आपसे जो बात कही ना, वो आप मेरी बात को समझिए कि हम जो नमाज पढ़ते, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, खाना जिस तरह हम नमाज, रुक जाइए, पानी पी लूं। हाँ ठीक है, पानी पी लीजिए, आराम से पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा राजमा चावल खा रहा था ना, और आपकी बात सुनते सुनते मैंने कहा आराम से आप बोल लीजिए, तब तक मैं खा लूं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं होता आप बाद में मुझे टाइम दे दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब टाइम ही टाइम। अच्छा ठीक है, कोई हाँ आप बोलते चाहिए, मैं बैठ के पानी पी लेता हूँ। जी बोलिए। जी, जैसे मैंने कहा ना कि नमाज अभी तक हम जो समझते हैं कि पूरी कुरान हदीस से मुकम्मल हमारे पास है, उसकी सुन्नतें भी हैं, उसके हमको जो फर्ज बताए जाते हैं कायदों में जो हमने पढ़े हैं, नमाज की किताबों में पढ़ी कि 13-12 गालिब जितने फर्ज हैं वो हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर तकलीद को छोड़ दो, तकलीद को एक तरफ हटा दो, तकलीद करना ही, किसी की भी तकलीद नहीं करना, अब हमें ये सारे मसले डायरेक्ट हदीस से लेना है, अल्लाह के रसूल का फरमान। सुनो मेरी बात पूरी, पहले मेरी बात
अब मेरे मुद्दे पहले पे मेरी सीधे बात आते हैं। पूरी सुन लीजिए। अरे आप सिर्फ वही करते हैं, बात सुन तो ले मेरी। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल का फरमान, अल्लाह के रसूल की नमाज डायरेक्ट सराहतन हदीस में हो और मेरा अमल हो, इसमें किसी का दखल बीच में ना हो। ऐसी कोई नमाज आप मुझको बतला सकते हैं क्या? हाँ मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो चलिए, सहीह बुखारी की बिस्मिल्लाह हदीस करके। है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज हाँ। पढ़ो जैसे हाँ जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो। तो हाँ, सहाबा इकराम अच्छा। ने अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका देखा, उसको भाई हाँ। उम्मत को बता दिया कि अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अब जो बात अच्छा। आती है नमाज के अंदर की भाई फराइज क्या है, ठीक है, हाँ। वाजिबात क्या है, आदाब क्या हाँ। है, ठीक, हाँ हाँ, ये सब ठीक। क्या होते हैं, ये होती है मतलब भाई वो इस्तिलाह होती है, टर्म, क्या होती है? यानी कि इस्तिलाह क्या इंग्लिश में इस्तिलाह? इसको बोलते हैं टर्म, यानी कि हाँ, कोई मतलब? ऐसा अमल जो नमाज में हमको करना ही करना है, जिसके ना करने से नमाज ही हमारी भाई नहीं होगी, उसको हम लोग भाई हाँ। इस्तिलाह में टर्म में उसको बोलते हैं फराइज, यानी कि हाँ। ऐसी चीजें जिनको नमाज में हाँ, करना तो ही करना है, अनिवार्य है, हाँ, तो ये कितनी कंपल्सरी है। चीजें हैं, कुल कितनी चीजें ऐसी नमाज में, यानी सीधे से अल्फाज में कहेंगे फर्ज कहते हैं उन्हें, तो ये फर्ज तो समझ कितने हैं लीजिए कुल? ना कि मतलब क्या होता है, कल को आप कहेंगे कि आप अल्लाह के नबी ने ये कहा कि ये फर्ज है, तो वहाँ पे अल्फाज आपको नहीं मिलेगा फर्ज का, जैसे अल्लाह के नबी ने अच्छा, फरमाया, अल्फाज, फॉर तो ये एग्जाम्पल आपको फर्ज बता कितने रहे हैं, हैं? अल्लाह नहीं, के ये रसूल ने फर्ज। फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 756, ठीक है, 756 की, और उसकी हाँ। नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। तो नमाज में सूर्य अच्छा। फातिहा जो है भाई ये फर्ज है। क्यों? ये फर्ज है। हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी अच्छा, कह रहे हैं तो इसके ये- बिना भाई वो नमाज नहीं होती, यानी कि अच्छा। ऐसी चीज नमाज में जिसके छूटने से भाई वो जो हमारी जो इबादत है, नमाज है, वो नहीं मुकम्मल होगी, उसको आम तौर पे इस्तिलाह में टर्म में उसको बोलते हैं फर्ज, यानी कि वो चीज अच्छा। नमाज में करना फर्ज है, और जो अच्छा, तो अल्लाह के नबी हाँ, करते तो थे ये उसको वही तो बोलते पूछ रहा हूँ, हैं। ऐसे कितने फर्ज है नमाज में कुल? मुझे देखिए फर्ज गिना दीजिए आप। देखिए सबका अलग अलग है, ठीक है। अब नंबरों के क्या हिसाब से सबका अगर आप अलग अलग? बांटेंगे तो हाँ। भाई जब हम जमात में गए थे पहली बार, तो हमको बताया गया था कि नमाज में 14 फराइज होते हैं, 7 अरे मैं अंदर के जमात की 7 तो बाहर बात ही के। नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहा। मैं जमात की या अरे भाई आपको आसानी से उसकी समझा बात ही रहे नहीं हैं कर, मैं अल्लाह तो के बंदे। हदीस आपने कहा मैं अहले हदीसों में तकलीद नहीं करता, तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ हदीस ही से है कि आप हदीस ही में बतलाइए कि नमाज में कितने फर्ज हैं कुल। पहले फर्ज की तादाद मुझे बतला दीजिए। तो वही मैं पूरी आपको 2 बता रकात रहा हूँ ना, नमाज। देखिए जो हमारे मतलब बाज भाई हैं, उन्होंने जो भाई वो दीन है उनको नंबरों में बांट दिया है, जैसे हमारे बात भाई की मैंने क्या कहा, मैंने आप सुनिए, मैंने क्या कहा, मतलब मैं आपने भाई कसम की खा बात नहीं रखी है कि करता। आप खाली सवाल करते रहेंगे, बोलने नहीं देंगे मेरे प्यारे भाई। अभी तो आप कह रहे थे कि अरे, इस्लाह की नियत से बात करनी है, अब आप फिर हाँ बहसबाजी करने बिल्कुल। लगे। चलिए, तो सुन अच्छा तो आप लीजिए बोल ना लीजिए, मेरी फिर पूरी मुझे बात। बोलना दीजिए। हाँ। देखिए जैसे बास लोगों ने जो मेरे भाई इसको उसमें बांट दिया है नंबरों में, ठीक है, जैसे हमारे तबलीगी भाई लोग बोलते हैं कि नमाज में 14 फराइज हैं, 7 अंदर के 7 बाहर के, तो ये नंबर वाला आपको हम नहीं बताएंगे, हम आपको बकायदा अल्फाज बाई अल्फाज आपको बताएंगे कि किन किन चीजों को हमको भाई करना ही करना है, उनके ना होने से मौजूद भाई वो जो हमारी नमाज है वो होगी नहीं। जिसमें पहला क्या है भाई, तहारत, यानी कि पाकी। हाँ। अगर हम नापाक हैं, तहारत हमारे भाई वो नहीं है, तो नमाज हमारी नहीं होगी। दूसरा हमारा क्या है, सतरे औरत, यानी कि जो मतलब भाई जो सतर होता है वो हमारा छुपा होना चाहिए। अच्छा। ठीक। तीसरा ये है कि मतलब जो हम पढ़ रहे नमाज उसका भाई औकात हो, वक्त हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि जोहर के वक्त में हमने भाई असर की पढ़ ली या असर के वक्त में हमने ईशा की पढ़ ली, वक्त पे हमको नमाज पढ़ना है। ये 3 फर्ज होगा है ना? ये फर्ज है, ये नहीं है कि हम कोई भी वक्त में जब मन चाहा कोई भी नमाज पढ़ ली। ये 3 नमाज फर्ज तो होगा उनके ना? वक्तों पे उनके अदा करनी है। ये अगर 3 उनके फर्ज वक्त होगा, पे नमाज मैं हम नहीं वहीं पर पढ़ते गिन हैं, रहा हूँ अपनी आपके अकल से फर्ज। पढ़ते हैं तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, आगे। चौथा ये भाई किबला रुख होके, यानी कि भाई आप किबला रुखी होंगे। अब वो आप मेरे भाई वो गिनते रहिए, ठीक है, अच्छा, क्योंकि गिनती से हमने याद नहीं किया है। हाँ। 5वां ये है नियत।
अब नियत क्या है, जबान से अल्फाज हमको अदा नहीं करना है कि मैं नियत करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा कभी है, इस तरह पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, ये नहीं, अल्फाज नहीं अदा करना है। नियत जो है भाई हमको अपने भाई जो अपने अंदर फैसला करना है दिल के अंदर कि हम कौन से वक्त की कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज है सुन्नत है, ये अपने लिए फैसला करना है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। बिना नियत के हम नहीं पढ़ सकते कि हाँ मतलब बस वो उठाया चालू हो गए और पता भी नहीं है कौन सी पढ़ रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो नहीं भाई, अमाल का दारोमदार काहे पे, नियत पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। पांच फर्ज होगा ये, है ना? अरे हाँ, गिनते रहिए। और उसके हाँ, बाद तो भाई ये तकबीर तहरीमा, यानी कि तकबीर तहरीमा जो दोनों हाथों को हम लोग भाई उठा के अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल होते हैं, ये फर्ज है। हम बिना मतलब बिना भाई अल्लाह अकबर कहे तकबीर तहरीमा कहे हुए हम डायरेक्ट मतलब भाई अपने हाथों को हम नहीं बांध लेंगे। अल्लाह के नबी ने एक भी नमाज में बिना भाई तकबीर तहरीमा के भाई अपने हाथों को नहीं बांधा। अच्छा, ठीक है। ये 6 फर्ज होगा। अब और आगे तो क्या अब इसमें 6 फर्ज है। हाँ, ये तो हो गए भाई जो आमतौर पे लोग जानते हैं, ठीक। नहीं, आम लोगों से मतलब ही नहीं ना मुझे। अरे हजरत, मैं आपको कौन क्यों लगाता फिर आम लोगों की बात आप कर रहे हैं। आमतौर पे लोग जानते हैं, ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो आमतौर पे लोग जानते नहीं। अरे यार, आप तो वहीं भेज रहे हैं मुझे जहाँ से मैं आप आए हूँ। आम तौर से आम लोगों से मुझे मतलब ही नहीं किसी से, मुझे तो हदीस से मतलब है। हदीस, अहले हदीस से सिर्फ हदीस ही से सवाल होगा। और अहले हदीस खाली जो अल्लाह का कुरान है और अल्लाह के नबी का फरमान है उनसे ही बताएगा। वो हनफी मसलक नहीं बताएगा, आपने ये जो 5 फर्ज बतलाए अभी, आप ये 5 फर्ज 6 फर्ज जो बतलाए, इसको अल्लाह के रसूल ने कहीं फर्ज बतलाया है इसको, या हदीस में इसका फर्ज का हुक्म आया है? बता दिया था कि कहीं पे आपको ये जो अल्फाज है, अल्फाज आपको नहीं मिलेगा कि ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये फर्ज है। अच्छा, ये हदीस में नहीं मिलेगा कहीं। जो नमाज में अगर वो चीज ना हो, उसके ना पूरी होने से नमाज आपकी ना हो, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये नमाज में फराइज है, कंडीशन है। ये एक इस्तिलाह है, टर्म है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए जरा, कोई काम आया मुझे, तो आपको थोड़ी देर बाद फोन लगाता हूँ, है ना? आप ये फर्ज याद रखिए ना। ठीक है भाई, ठीक है, हम आपको सब समझा देंगे ना। पूरी नमाज बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको उसको मेरे भाई समझना पड़ेगा। आपसे राब्ता करता रहूंगा मैं, 1 मिनट, है ना? मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। वालेकुम सलाम।